my dear students, very precious good morning to all of you. Welcome to Dr. Sanjay Singh Biology tutorial. In previous lectures, I discussed about the nature and characteristics of the enzymes as well as mechanism of enzymes. What is the enzyme? Enzyme is a what? Enzyme is a type of biological catalyst. It increase or enhance the rate of biochemical reaction as well as lowering down of energy. इसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया. Today, now we are going to discuss the factor affecting enzymes activity. Factor affecting enzyme activity. Activities. Various factors, they are directly affect the enzyme's activity, either increase or decrease. Some factors mentions here. The first factors affect the enzyme activity, that is known as temperature. Temperature. Temperature is the most important factor affect the enzyme's activity. Enzyme's activity means enzyme reaction activity. Here is the one graph plotting takes place. Here is the temperature and enzymes activity. Enzyme activity or velocity activity. These hyperbolic curves are for, here is the optimum temperature range, here is the optimum temperatures, optimum temperature. Zero, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Here is the degree Celsius. This is the temperatures. अभी हम बात करते हैं. This is the first factor that is known as temperature. Means most of the enzyme, they are present in the living things, are highly active at a narrow temperature range that is known as optimum temperature. So what is the range of the temperatures? A range of temperature where enzymes are highly active का रेंज जो क्या in between 20 डिग्री सेंटीग्रेड to 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो होते हैं. मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर हाईली एक्टिव. मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर हाईली एक्टिव. हाईली एक्टिव. बट यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ प्लॉटिंग में होता है. हियर इज द अबव 40 डिग्री. तो यहाँ पर एक्टिविटी क्या हो जाए? डी नेचर्स ऑफ एंजाइम्स. डी नेचर ऑफ एंजाइम्स एक्टिविटी. एंजाइम एक्टिविटी. इनएक्टिव. इनएक्टिव ऑफ एंजाइम एक्टिविटी. एंजाइम एक्टिविटी. हम इन प्रीवियस लेक्चर आई डिस्कस डिटेल about the enzymes. Enzyme is what? Enzyme is a type of macromolecule because they are made up of protein. ये प्रोटीन से बना है और हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन आर डी नेचर एट हाई टेम्परेचर बट इनएक्टिव एट लो टेम्परेचर. तो जब टेम्परेचर लो होगा एट दिस टाइम आप देख रहे हो, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, रेट ऑफ एंजाइम्स एक्टिविटी इंक्रीज कर रही है अप टू ए सर्टेन लिमिट्स. बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट्स अगर अगेन हम टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं तो एंजाइम्स एक्टिव अगेन फॉल डाउन. वो फॉल डाउन हो रहा है, नीचे की तरफ आ रही है. ठीक है. तो एट लो टेम्परेचर पे क्या होता है? इनएक्टिव ऑफ एंजाइम. एंजाइम्स इनएक्टिव होंगे, मतलब इट हैविंग ए फंक्शनल एक्टिविटीज. उसके अंदर फंक्शनल एक्टिविटीज होगी. कैटालिटिक एक्टिविटीज आर प्रेजेंट at the low temperature. When the temperature rises above the 40 degree Celsius, at this time most of the enzymes are
डी नेचर बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ प्रोटेनियस कंपाउंड। तो डी नेचर में क्या हो जाएगा, डी नेचर का मतलब होता है डी नेचर ऑफ एंजाइम मीन्स उसकी पूरी की पूरी कन्फॉर्मेशन ही चेंज हो जाता है और आप सोच सकते हो कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर परमानेंटली इनएक्टिव हो जाते हैं। तो हियर द डी नेचर कंडीशन एट हाई टेम्परेचर एंड इनएक्टिव कंडीशन एट लो टेम्परेचर, बट सम एक्सेप्शनल टेक्स प्लेस, कुछ एक्सेप्शंस भी प्रेजेंट होते हैं। वह है पहला, एक एंजाइम्स प्रेजेंट इन थर्मस एक्वेटिकस, दिस इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया, थर्मस एक्वेटिकस, एक्वेटिकस, this is the thermophilic bacteria, thermophilic bacteria, thermophilic bacteria, one enzymes are obtained and this enzyme is known as tag polymerase, tag polymerase, tag polymerase are active up to 91 डिग्री सेंटीग्रेड तक वह एक्टिव रहता है, active at this temperatures, active this temperature, but most of the enzymes are denatured above 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको क्या हुआ, दो कंडीशन आपको मिला, लो टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, एट लो टेम्परेचर enzymes और inactive enzyme at high temperature, अगर हाई टेम्परेचर पर अगर अब 40 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर डी नेचर, अपने पूरे शेप से ही उनका चेंज हो जाता है, डी नेचर, इसमें शेप चेंज नहीं होता है, डी नेचर ऑफ एंजाइम्स। तो दे आर वेरी डेंजरस फॉर द एंजाइम्स। ये तो हाई टेम्परेचर बहुत ही डेंजरस होता है। हम एक सिंपल सा एग्जांपल आपके बॉडी को ले लेते हैं। जब हमारे बॉडी में फीवर होता है तो मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं इनसाइड अवर बॉडी आर वेरी वेरी स्लो, आपको खाने का मन नहीं करता, डाइजेशन पर भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वह अबव 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो एट दिस टाइम क्या होगा, एट दिस टाइम एंजाइम्स स्टार्ट डीनेचुरेशन, वहाँ पर डीनेचुरेशन स्टार्ट कर देगा अबव हाई टेम्परेचर। तो द टेम्परेचर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द एंजाइम्स एक्टिविटी। एक नैरो टेम्परेचर रेंज होगा, एंजाइम्स आर हाईली एक्टिव। व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर? टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर एंजाइम्स आर हाईली एक्टिव, एंजाइम्स आर हाईली active and this temperature is known as optimum temperature. Next, the second factor affect the enzyme activity is known as pH. Understood everyone? pH. What is pH? pH is the negative logarithm of hydrogen ion concentration. ये क्या है? negative logarithm of H plus ion concentration. तो on the basis of their H plus and OH, the pH categorized into three types: acidic pH, ये this is the pH scale 0 या 1 to 6, they are belonging to acidic pH, neutral pH 7 and alkaline pH above 7 8 to 14. In acidic pH, hydrogen ion concentration is more than hydroxyl ion concentration. At neutral pH, H plus and OH minus concentration is same. So this pH is known as neutral pH and alkaline pH में क्या होगा? The concentration of
hydroxyl ion concentration is more than H plus ion concentration. ठीक है, तो हम ये बात अभी हमने नॉर्मल बात किया कि व्हाट इज द pH. pH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. as they are categorized into three types: acidic, neutral, as well as alkaline or basic pH. In acidic pH, hydrogen ion concentration is more than the hydroxyl ion concentration. At neutral pH में क्या HNOH concentration is more or not more, same, but in here opposite हो जाएगा. acidic का concentration of hydroxyl ion is more than the H plus ion. तो कंक्लूजन क्या मिला एंजाइम्स के रिलेटेड की बात हुई कि ये ग्राफ प्लॉटिंग से आपको क्लियर हो जाएगा. हियर इज द pH scale, pH scale. Here the graph is the 7, 1, 3, 5, 9, 11 and 14. Optimum pH. Optimum pH. At अब यहाँ पर क्या होगा, डीनेचर ऑफ एंजाइम्स. यहाँ पर भी इस कंडीशन में क्या होगा, डीनेचर ऑफ एंजाइम्स, डीनेचर्स ऑफ एंजाइम्स. तो इसी कंक्लूजन क्या निकल रहा है, हियर इज द एंजाइम्स एक्टिविटीज. हियर एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटीज. तो यहाँ पर जो कंक्लूजन, ओवरऑल कंक्लूजन यहाँ से इस ग्राफ प्लॉटिंग से आ रहा है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर हाईली active and reactive at neutral pH. At neutral pH पर एक्टिव होते हैं. ये न्यूट्रल pH क्या है, 7 पर. दिस इज द ऑप्टिमम pH पर एक्टिव होते हैं. बट द सम एंजाइम्स दे आर प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल. दे आर इम्पॉर्टेंट रोल फॉर डाइजेशन ऑफ द फूड्स. वन एंजाइम प्रेजेंट इन द स्टमक एरिया, they are highly active in acidic pH, and one enzyme present in the small intestine and they are highly active at alkaline pH. तो उसका नाम क्या है, ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन present in the stomach area, they are active 1 to 3 pH पर भी हाईली एक्टिव होती है. 1 to 3 pH पर ये हाईली एक्टिव हो रही है, हाईली एक्टिव and reactive होगा. The pepsin, not trypsin, pepsin. Another enzymes, this is the first enzymes, they are active at acidic pH, and the second enzyme that is known as trypsin. Trypsin, they are found in small intestine. They are active at 7.6 to 8.5 pH पर ये हाईली एक्टिव. तो आपने देखा कि कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं दैट इज नोन एज डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वह आइदर आर हाईली एक्टिव इन एसिडिक पीएच और अल्कलाइन पीएच. बट मोस्ट ऑफ द एंजाइम प्रेजेंट इन अवर सेल दे आर हाईली एक्टिव एट न्यूट्रल पीएच बिकॉज our cell pH is near about neutral in nature. This is the second factor. They directly affect the enzymes activity. Third is substrate concentration. This is the third factors. And third is substrate concentration. Here is the enzymes activity. Enzyme activity. Substrate concentration. Substrate concentration.
बी मैक्स, हाफ बी मैक्स के एम, हाइपरबोलिक कर्व, हाइपरबोलिक कर्व। नेक्स्ट, दैट इज नोन एज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट इज व्हाट, हमने पहले भी बोला था कि एंजाइम्स बाइंड विद द सबस्ट्रेट एट ए स्पेसिफिक पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज नोन एज एक्टिव साइट्स। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में बाइंडिंग होती है, जस्ट लॉक एंड की मॉडल इंड्यूस्ड फीड थ्योरी जैसा होता है कि पर्टिकुलर एंजाइम बाइंड विद पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, मीन्स एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, वो अपने ही सबस्ट्रेट से बाइंड करती है। अभी बात करती है कि क्या सबस्ट्रेट एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस ग्राफ प्लॉटिंग से ये क्लियर हो रहा है कि इफ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, अगर आप बढ़ा रहे हो तो एंजाइम्स एक्टिविटी इज आल्सो इंक्रीजेज, वो बढ़ रही है अप टू ए सर्टेन लिमिट्स। ऐसा करें इस लिमिट तक, बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट्स, अगर उसके बाद भी इफ अगेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आर इंक्रीजेज, नो एनी एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स आर सीन इन दिस ग्राफ प्लॉटिंग। इसमें नहीं देखी जा रही है, कांस्टेंट जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा होगा? जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझो, कोई एक ऐसा मीडियम है जिसमें एंजाइम एंड सबस्ट्रेट्स हैं, मतलब इफ फॉर एग्जांपल इफ वन एंजाइम बाइंड विथ वन सबस्ट्रेट्स से वो बाइंड करती है, इफ कितना है 50 एंजाइम प्रेजेंट इन द मीडियम, तो कितने से बाइंड कर सकती है 50 तक, इसके बाद वो कर नहीं सकती। तो जब तक 50 नहीं होगा तब तक रेट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे ही वो 50 होता है, इट मीन्स ऑल द एंजाइम्स आर सैचुरेटेड इन द फॉर्म ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर एंजाइम और सबस्ट्रेट बांधते चले और यहाँ पर जाते पर ES कॉम्प्लेक्स बन गया। ES कॉम्प्लेक्स हमने मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में बात कहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम बाइंड विद द सबस्ट्रेट टू फॉर्म ES कॉम्प्लेक्स। क्या बनाया? ES कॉम्प्लेक्स मीन्स एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर क्या है, ऑल द एंजाइम्स आर सैचुरेटेड। सारे एंजाइम्स क्या हो गए? सैचुरेटेड। नो एनी एंजाइम्स प्रेजेंट इन द मीडियम। अब मीडियम में नहीं है बियॉन्ड। अब इसके बाद अगर आप जितना भी सबस्ट्रेट डालोगे, एंजाइम से बाइंड करेगा नहीं, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा नहीं। मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन भी किया हुआ है कि इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंजाइम्स एक्टिविटी अप टू ए सर्टेन लिमिट, अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक लिमिट तक, अप टू ए सर्टेन लिमिट। Beyond a certain limits, if again the reaction ultimately reaches the maximum velocity, here is the Vmax, तक जब पहुँच जाता है, which is not exceed by any further rises substrate concentration। उसके बाद अगर हम राइज करते हैं, बढ़ाते हैं, ऐड करते हैं, तो उसके एक्टिविटी में कोई भी एक्शन नहीं दिखा गया। क्यों नहीं दिखा गया? क्योंकि आप ये बोल सकते हो कि एट दिस कंडीशन एंजाइम्स आर फुली सैचुरेटेड इन द फॉर्म ऑफ ES कॉम्प्लेक्स, मतलब फुली सैचुरेटेड हो गया। नो, अब इसके बाद नो एनी फ्री एंजाइम्स प्रेजेंट इन द मीडियम, अब उस मीडियम में नहीं है। उसके बाद भी अगर आप सबस्ट्रेट ऐड करते हो तो उस पर भी कोई भी एक्शंस नहीं होगा। व्हाट इज द KM? KM क्या है? जहाँ तक ये मैक्सिमम वेलोसिटी उसका जो हाफ होता है, कट करता है, उसको जो नीचे आएगा, दैट इज नोन एज KM। KM इज आल्सो नोन एज मिचेलिस कांस्टेंट। मिचेलिस एक नेम ऑफ द साइंटिस्ट, उन्होंने इस KM वैल्यू को ये फाइंड आउट किया था। उन्होंने ये दिखाया था कि ये जो KM वैल्यू क्या करता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है। और ये सबस्ट्रेट ये एक ऐसा फिक्स पॉइंट होता है जिसपे 50% एंजाइम्स एक्टिविटी देखी गई, हाफ बी मैक्स। तो अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इस पर अगर समझो कि अगर ये हियर इज द 1 एंड हियर इज द 2, अगर यहाँ पर आया 2.3 पर वह आपको कितना हो रहा है 50% सेचुरेशन, इसका 50% एंजाइम एक्टिविटी सीन है, तो ये कितना जा सकता है 2 कर दोगे फुल में के कितना हो जाएगा 4.6 कंसंट्रेशन पर एंजाइम्स आर फुली
सैचुरेटेड। हम किस कंसंट्रेशन पर एंजाइम्स आर फुली सैचुरेटेड इन द फॉर्म ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स, इस हम केएम वैल्यू से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि केएम वैल्यू इंडिकेट 50% एंजाइम्स एक्टिविटी को इंडिकेट कर रहा है, और ये इसका डबल, वो मैक्सिमम हो जाए 100% हो जाएगा, तो इसका डबल कर दोगे तो आपको एग्जैक्ट कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ मिचाइलिस कांस्टेंट। तो सबस्ट्रेट इज आल्सो अफेक्ट द एंजाइम्स एक्टिविटी। इट मीन्स शुरू में आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, बढ़ाया, तो एंजाइम्स एक्टिविटी भी इंक्रीज कर दी अप टू ए सर्टेन लिमिट। बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट, इफ अगेन एडेड द सबस्ट्रेट concentration inside the medium or solution, no any activity of enzymes are seen in this graph plotting. So here is the third factor, that is known as substrate concentration. Next is inhibitors. Fourth is inhibitors. इनहिबिटर्स क्या है? इनहिबिटर इज ए टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड। ये क्या हुआ? केमिकल कंपाउंड है। ये क्या रहेगा? बाइंड टू इंजाइम्स। ये किससे बाइंड करेगा? बाइंड टू इंजाइम्स। ये इंजाइम से बाइंड करेगा एंड इनहिबिट द एक्टिविटी, इनहिबिट the activities of enzyme, activities of enzymes, उसकी enzymes की एक्टिविटी को क्या करेगा? इनहिबिट कर देगा। तो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज, ऐसे को हम क्या बोलेंगे? इनहिबिशन। ऐसे फिनोमेना को हम इनहिबिशन बोलेंगे, इनहिबिशन। एंड द केमिकल कंपाउंड इज नोन एज इनहिबिटर। उसको हम क्या बोला? इनहिबिटर। ऐसे को हम इनहिबिटर से नाम देते हैं। तो इनहिबिटर्स आर टू टाइप्स, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और रिवर्सिबल इनहिबिटर, रिवर्सिबल इनहिबिटर। एंड सेकेंड इज non-competitive, or irreversible inhibitors. Basically there are two type of inhibitors. They inhibit the activity of enzymes, competitive as well as non-competitive. So first of all discuss detail on competitive inhibitors. Competitive inhibitor, I will explain competitive inhibitor with the help of simple diagrams. Here is the enzymes, enzyme. Here is the substrate molecules, here is the substrate, and here is the inhibitors. Inhibitor, inhibitor that is known as, उसका एक नाम ले लेते हैं कि जब मेलोनेट, मेलोनेट इज ए टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ये इनहिबिटर्स होता है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? हियर इज द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम, एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम, हियर इज द एंजाइम्स। तो यहाँ पर क्या होगा? इनहिबिटर्स, यहाँ पर जो इनहिबिटर होंगे, इनहिबिटर compete with substrates, compete with substrates। ये क्या करेगा? bind on active sites and inhibit
inhibit the activity of enzymes. एग्जाम्पल्स यहाँ पर कहाँ पर एप्लीकेबल होगा? सम बैक्टीरियल पैथोजन products inhibited by competitive inhibitor. दे आर वेरी सिंपल. यहाँ पर आप समझो कि क्या करा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या है कि इन दोनों के जो स्ट्रक्चर्स हैं, सबस्ट्रेट्स एंड इनहिबिटर्स बोथ आर सेम, दोनों के क्या है? सेम है. तो इसके ये क्या होना चाहिए? यहाँ पर बाइंड कर, लेकिन ये इसके प्लेस पर ये जाकर बाइंड कर जाता है. यहाँ पर ऑन द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम यहाँ पर ये बाइंड कर जाएगा. जब इनहिबिटर है तो क्या करेगा? उसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा नहीं, क्या करेगा? ये इनहिबिटर्स हुआ और इसकी एक्टिविटी को क्या कर दिया? इनहिबिटर्स. और ये क्या करेगा? चेक कर देगा, चेक एंजाइम्स एक्टिविटी. यस. तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से आपने क्या देखा कि द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ इनहिबिटर एज वेल एज सबस्ट्रेट्स बोथ आर सिमिलर. ये उस पर बाइंड कर गया, उसी के प्लेस पर आगे बाइंड कर जाता है, चेक द एंजाइम्स एक्टिविटी. तो दिस टाइप ऑफ इनहिबिटर इज नोन एज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स फॉर लिविंग थिंग्स. इफ द एनी बैक्टीरियल पैथोजन हमने यहाँ पर दिया है, बैक्टीरियल पैथोजन प्रोडक्ट इनहिबिटेड बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. अगर वो बैक्टीरिया अपने अंदर आता तो अपने प्रोडक्ट को देता है, जिससे हमारे लिए डिजीज प्रॉब्लम्स आने लगता है. तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उस पूरे मैकेनिज्म को ही वो अगर ब्लॉक कर दिया जाए विद द हेल्प ऑफ इनहिबिटर्स, क्योंकि बैक्टीरिया के पास एंजाइम्स होंगी और उस एंजाइम्स पर ये इनहिबिटर जाकर बाइंड कर जाए, तो चेक और इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस को रोक देता है और हम उससे डिजीज फ्री हो जाते हैं. तो वहाँ पर इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. एज वेल एज हमने इसका कहा कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इज ए टाइप ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर. रिवर्सिबल इनहिबिटर है क्यों? क्योंकि अगर ये यहाँ से सबस्ट्रेट से ये इनहिबिटर से बाइंड नहीं किया तो क्या होगा? इफ द सबस्ट्रेट बाइंड ऑन द सेम साइड, उसके प्लेस पर बाइंड किया, देन अगेन स्टार्ट द एंजाइम्स एक्टिविटी. इट मीन्स एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वह डैमेज नहीं हो रही है, एंजाइम्स डीनेचर नहीं हो रहा है, उसके कन्फॉर्मेशन चेंज नहीं हो रहे हैं. केवल रीजन क्या था कि उस साइड्स पर इनहिबिटर आ जाने से बंद होगा. जैसे ही वो फ्री होगा देन अगेन वो कैटालिटिक फॉर्म में रहेगा और अगर जैसे ही सबस्ट्रेट यहाँ पर इजीली बाइंड करेगा देन अगेन स्टार्ट एंजाइम्स एक्टिविटी. तो दिस टाइप ऑफ इनहिबिटर इज नोन एज रिवर्सिबल इनहिबिटर. एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर्स ये क्या करेगा? वर्क एज द एंजाइम्स एक्टिविटी के रूप में काम करेगा, प्रेजेंस में वह इनहिबिट कर देता है. सेकेंड इज द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स. नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स यहाँ पर क्या होगा? इनहिबिटर बाइंड्स टू अदर साइट ऑफ एंजाइम देन एक्टिव साइट. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. वहाँ पर इनहिबिटर का कहाँ पर बाइंड किया? ऑन द एक्टिव साइट. लेकिन यहाँ पर एक्टिव साइड्स में बाइंड नहीं करता. दूसरे साइड, दूसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, हाँ, अदर साइड्स चेंज द कन्फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम की कन्फॉर्मेशन को चेंज कर देगा. अल्टीमेटली क्या होगा? एंजाइम्स आर नॉन फंक्शनल. एंजाइम्स आर नॉन फंक्शनल हो जाएगा. क्या हो जाएगा? इनहिबिट द एक्टिविटी. इनहिबिट
activities of enzyme, activity of enzymes. जैसे फॉर एग्जांपल हम डायग्रामेटिक समझाएं, हियर इज द एंजाइम्स, ये बाइंड इनहिबिटर्स एक अलग साइड से बाइंड कर रहा है, हियर इज द एक्टिव साइड्स, here is the inhibitors, non-competitive inhibitor, here the active sites, here is the enzyme, here is the non-competitive inhibitor, non-competitive inhibitor, here is the active site, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, चेंज द कन्फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम, चेंज द कन्फॉर्मेशन मीन्स स्ट्रक्चर, चेंज द कन्फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम, इसका पूरा शेप ही बदल देगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्टिव साइड फ्री, एक्टिव साइड फ्री, बट सबस्ट्रेट्स, सबस्ट्रेट नॉट फिटेड, नॉट फिटेड ड्यू टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव साइड, change the structure of active site, active site, और इसके कारण से क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, एक्टिविटी रुक जाएगी। तो आप ये देख सकते हो, समझो हियर इज द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, ये इसका ऐसा सबस्ट्रेट है, हियर इज द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट। अब इस सबस्ट्रेट यहाँ पर फिट नहीं बैठेगा क्योंकि इसका शेप ही बदल गया, ये राउंड शेप ऐसा हो गया, सर्कुलर हो गया, और ये ऐसा सर्कुलर नहीं था, ये ट्राइंगुलर शेप था, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या करेगा, फिट नहीं बैठा रहा। तो आपने क्या देखा कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में क्या होता है, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर बोथ द स्ट्रक्चर आर मोर और लेस सिमिलर, बट इन हियर द नॉन कॉम्पिटिटिव जो इनहिबिटर्स होते हैं इनके शेप भी अलग होते हैं, स्ट्रक्चर भी अलग होते हैं, बट दे बाइंड टू द अदर साइड ऑफ द एंजाइम, ये अदर साइड ऑफ द एंजाइम से बाइंड करेंगे, एक्टिव साइड से बाइंड नहीं करते। अल्टीमेटली चेंज द कन्फॉर्मेशन ऑफ, जिसका पूरा शेप ही चेंज कर दिया। शेप एक्टिव साइड्स ऑफ एंजाइम्स आर फ्री तो है, बट सबस्ट्रेट्स आर नॉट फिटेड ऑन द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम बिकॉज चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिव साइड। जैसे किसी लॉक में अगर की आप डालते हो, अगर लॉक ही बदल दिया जाए तो फिर वो की नहीं जाएगा, तो ये लॉक ही बदल गया एक तरह से, आप समझो। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल आप ले लो, साइनाइड, साइनाइड ये एक तरह से एक ऐसा इनहिबिटर है, नॉन इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट एंटायर रेस्पिरेटरी एंजाइम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंजाइम, और अल्टीमेटली डेथ हो। इसीलिए साइनाइड का अभी तक कोई टेस्ट नहीं, जैसे ही आप साइनाइड रखा और वो पूरा का पूरा जो बायोकेमिकल रिएक्शन जो प्रोसीड हो रहे थे ड्यू टू एक्शन ऑफ साइनाइड, साइनाइड इज द वेरी डेंजरस केमिकल, वेरी टॉक्सिक केमिकल, अल्टीमेटली क्या होता रहा, एट वंस चेंज ऑल द एंजाइम कन्फॉर्मेशन पूरा चेंज हो गया, जिस कारण से वो सबस्ट्रेट उसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाए और अल्टीमेटली डेथ हो गया। तो इस तरह से हमारे 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो थे डायरेक्टली अफेक्ट द एंजाइम्स एक्टिविटी। द फर्स्ट इज द टेम्परेचर, सेकेंड इज द pH, थर्ड इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंड फोर्थ इज known as inhibitors. So thank you for watching this video. Have a nice day all of you. Have a nice day all of you.